Good morning, students. So today we are going to wind up our first chapter. Very easy topic this is, that is economic and non-economic activities. So students, first let us understand what is the introduction. See children, all the human beings are engaged in some activity or the other in order to satisfy their basic needs. जैसे कि all of you know, you want to satisfy your basic needs, so definitely we are engaged in some other activity. Why? Because if we don't do any activity, how we will be able to satisfy our wants? Take an example. Suppose farmers are busy in their field and workers are doing work in the factories. Professionals like us, CAs, doctors, teachers, everyone, lawyer, all are doing some other work. Why they are doing some other work? Because to earn something. Because if we are not busy in any activity, how we will be able to satisfy our wants? So depending on our wants, all human activities can broadly be classified into two categories. So first category is economic activities and the second category is non-economic activities. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जिसको करने से हम कुछ पैसा कमा सकते हैं. जिसको ध्यान से समझ लो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स डोंट अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच आर अंडरटेकन टू अर्न मनी, मतलब पैसा कमाने के लिए जो एक्टिविटी हम करते हैं उसको बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी. नाउ योर फादर इज वर्किंग इन अ फैक्ट्री, सो दैट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, राइट? I am working in a school, I am teaching to children, so I am doing an economic activity. Understand this? Now see, economic activities refer to those activities which are undertaken to earn a living. For example, a worker if he is working in a factory, shopkeeper अगर अपनी दुकान में सामान बेच रहा है तो वो उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है. डॉक्टर जो है अपने पेशेंट्स को अटेंड कर रहा है अपने क्लिनिक में, तो वो उसकी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी. इस तरह से कोई भी इंसान अगर अपनी वांट सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी एक्टिविटी कर रहा है टू अर्न मनी, ओके, देन दैट इज नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटी. सो एवरी इकोनॉमी शुड अंडरटेक दीज three main economic activities. First is what? Consumption. So now let us understand the meaning of this consumption. Consumption is an economic activity which deals with the use of goods and services for the satisfaction of human wants. So what is consumption? Consumption भी एक economic activity है which is dealing with the use of goods and services. Means हम लोग किसी भी गुड्स और सर्विसेज को जब यूज़ करते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए, दैट इज नोन एज कंजम्पशन. जैसे कि एग्जांपल ले लो, इफ़ यू आर ईटिंग अ ब्रेड, ठीक है, यू आर ईटिंग ब्रेड मीन्स यू आर कंज्यूमिंग ब्रेड, ठीक है. किसी भी चीज़ को आप यूज़ कर रहे हो का मतलब होता है कंज्यूम करना. इफ़ यू आर ड्रिंकिंग मिल्क, इफ़ यू आर वेयरिंग वॉचेस, इफ़ यू आर लिसनिंग टू म्यूजिक, all these are what? They are the consumption activities. Now let us see production activities. Production refers to those activities which are undertaken to produce goods and services for generation of income and satisfying human wants. Production का मतलब क्या होता है? वो सारी एक्टिविटी जो कि प्रोड्यूस किस लिए होती है? फॉर द विच इज़ डन टू यूज़ गुड्स एंड सर्विसेज. जो भी एक्टिविटीज़ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए होती है जिससे हम इनकम जनरेट कर सकते हैं, इसका मतलब जिससे हम कुछ पैसा कमा सकते हैं, एंड दे कैन सेटिस्फाई आवर ह्यूमन वांट्स. सो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स. प्रोडक्शन मतलब देखो फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन होता है कि नहीं? यू आर हैविंग रॉ मटेरियल मीन्स यू आर बाइंग रॉ मटेरियल एंड विद दैट रॉ मटेरियल यू आर मेकिंग फिनिश्ड गुड्स. इसको बोलते हैं प्रोडक्शन. समझ में आया सबको? प्रोडक्शन का सिंपल मीनिंग, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर are the four factors of production. Always remember these four things, children. Land, labor, capital and entrepreneur are the four factors of production. The activities of farmer, carpenter, trader, teacher, doctor, shopkeeper all comes under what? Production. Why we are coming under production? क्योंकि प्रोडक्शन के अंदर क्या था? फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में क्या है? लैंड, लैंड पे कोई काम कर रहे हो आप. लेबर इज डूइंग एनी वर्क. कैपिटल, इट्स इफ इट्स रिलेटेड टू कैपिटल मीन्स बिजनेस. एंड entrepreneur आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो टू वाइटल एलिमेंट्स ऑफ एन इकोनॉमी आर व्हाट? Production and consumption. This question can come for one mark, children. What are the two vital elements of an economy?
that is production and consumption are the two essential economic activities of an economy. So any individual in an economy is engaged either in consumption activities और इन प्रोडक्शन एक्टिविटी. मीन्स हमारी इकोनॉमी में या हमारी दुनिया में कोई भी इंसान या तो प्रोडक्शन के लिए प्रोडक्शन में बिजी होगा या फिर कंजम्पशन में. जैसे हम लोग हैं, वी आर एल्डर्स, वी आर डूइंग प्रोडक्शन एक्टिविटी, यू पीपल आर चिल्ड्रेन, यू आर स्टूडेंट्स. तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग कंजम्पशन एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो. सो व्हेन एन इंडिविजुअल इज एंगेज्ड इन द कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, तो हम क्या हो गए, वी आर कंज्यूमर. अगर हम ब्रेड कंज्यूम कर रहे हैं, अगर हम मिल्क पी रहे हैं, इफ वी आर बाइंग वॉचेस, दैट मीन्स वी आर वॉट, वी आर कंज्यूमर. If an individual is engaged in the production of some goods and services, then he is acting as a producer. Suppose मेरी खुद की एक फैक्ट्री है, I am producing some goods. That means I am a producer also. मतलब कंज्यूमर तो मैं हूँ ही, प्लस मैं प्रोड्यूसर भी हूँ. So distribution का क्या मतलब होता है, देखो. Distribution is that economic activity which studies how income generated is distributed among the factors of production. Distribution का मतलब वो एक्टिविटी, वो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो आपको ये बताएगी कि जब आपने इनकम जनरेट कर ली है तो आपको उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में. इसका मतलब क्या होता है, सी इट इज डीलिंग विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम अराइजिंग फ्रॉम द प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस से कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो उससे जो टोटल इनकम मिल रही है उसको हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दैट इज नोन एज GDP. This GDP word is very important for you and it is new also for you to understand. तो ध्यान से समझो, GDP का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, पूरे ईयर में, पूरे साल में, इस पूरी इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं उनका जो इनकम है दैट इज नोन एज GDP. सो GDP it is distributed to land, labor, capital and entrepreneur in the form of, देखो ध्यान से सुनो, डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, इट इज डीलिंग विद डिटरमाइनिंग हाउ द टोटल इनकम विच इज अराइजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन प्रोसेस. मतलब प्रोडक्शन प्रोसेस से जो भी इनकम डिटरमाइन हो रही है उसको हम बोलते हैं GDP. ठीक है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर. लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये क्या है, दे आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब इसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया है GDP को, इन द फॉर्म ऑफ रेंट. मीन्स लैंड पे अगर कोई काम होगा तो उस पर रेंट मिलेगा. लेबर्स जो होते हैं, लेबर अगर कुछ काम करते हैं तो उनको वेजेस मिलता है. कैपिटल से रिलेटेड अगर कुछ काम होता है बिजनेस में, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर मतलब बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है, प्रॉफिट. सो ऑलवेज रिमेंबर, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, दे आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. एंड distribution of income is distributed in the form of rent, wages, interest and profits respectively. These are the basic things जो आपने BST में भी पढ़ना है और economics में भी. So please understand this. इस चीज़ को ध्यान से समझना बहुत ज़रूरी है. अब देखो important terms. Consumer कौन है? A consumer is one who consumes goods and services for the satisfaction of his wants. कौन है consumer? जो कि goods and services consume कर रहा है for the satisfaction of his wants. Producer कौन है? Producer is one who produces goods and services for the generation of income. For example, farmer और manufacturer. Farmer हो, कोई भी manufacturer हो, जो भी इंसान जिसके पास कोई फैक्ट्री है वो goods and services प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं, किस लिए प्रोड्यूस कर रहा है, ताकि कुछ इनकम जनरेट हो सके. Then सर्विस होल्डर. सर्विस होल्डर कौन है? सर्विस होल्डर इज अ पर्सन who work for some other person and get paid for it in the form of wages or salary. जैसे तुम्हारा स्विगी और जोमेटो को ले लो. स्विगी और जोमेटो क्या कंपनी है? क्या ये प्रोडक्शन, क्या ये ऐसी कोई कंपनी है जो किसी चीज़ के प्रोडक्शन में एंगेज्ड है? क्या ये कंज्यूमर है? नो. स्विगी, जोमेटो, देन अर्बन लाइफ, ठीक है, ऑल दीज आर व्हाट, दीज आर द सर्विस इंडस्ट्री. मीन्स दे आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द कंज्यूमर. अभी आपको अगर एक पिज़्ज़ा खाना है तो आप शॉपकीपर पे डायरेक्ट फ़ोन नहीं करते हो, डायरेक्टली हम कहाँ ऑर्डर करते हैं? स्विगी एंड जोमेटो. एंड स्विगी एंड जोमेटो, दे आर डिलीवरिंग पिज़्ज़ा एट आवर डोर स्टेप. इट मीन्स चिल्ड्रेन, दे आर प्रोवाइडिंग देयर सर्विसेज टू अस. So they are the service holder. So that's why it is said a service holder is a person who work for some other person and get paid
फॉर इट इन द फॉर्म ऑफ वेजेस और सैलरी। नाउ सर्विस प्रोवाइडर कौन है? सर्विस प्रोवाइडर इज अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सम काइंड ऑफ सर्विसेज टू अदर फॉर पेमेंट। फॉर एग्जाम्पल लॉयर, डॉक्टर, बैंकर्स एंड एक्सेट्रा। लॉयर जो है, अगर आपको कोई केस फाइल करना है कोर्ट में किसी के खिलाफ, तो आप लॉयर को हायर करोगे कि नहीं? तो लॉयर को अगर आप हायर करते हो तो लॉयर बदले में आपसे क्या लेगा? ही इज गोइंग टू डिमांड मनी फ्रॉम यू। ओके, तो लॉयर को हमसे पैसे मिलेंगे, बट इन रिटर्न व्हाट ही इज गिविंग टू अस? ही इज प्रोवाइडिंग हिज सर्विसेज टू अस। समझ में आ गया सबको? कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, सर्विस होल्डर एंड सर्विस प्रोवाइडर। इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ एनी ऑफ दिस, प्लीज यू कैन आस्क मी ऑन माई व्हाट्सएप। बट आपका कंसेप्ट इस क्लास 11th में इन सब चीज़ों के लिए प्लीज क्लियर कर लो। नाउ सी, सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स से देखेंगे। सो द इकोनॉमिक सब्जेक्ट मैटर इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग सेक्शंस ऑफ द स्टडी। कंजम्पशन, कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? वी स्टडी वांट्स, their origin, nature and characteristics and the laws governing them, that is consumption. प्रोडक्शन के में क्या हम लोग पढ़ेंगे? इन प्रोडक्शन वी स्टडी द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कैसे होता है, उसका बेसिक फीचर्स क्या है, एंड द लॉज विच गवर्न द प्रोडक्शन. एक्सचेंज, इन एक्सचेंज व्हाट हैपेंस? द प्राइस डिटर्मिनेशन थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई इज स्टडीड. एक्सचेंज का मतलब आपको अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, जब मैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में समझाऊंगी ना प्राइस डिटर्मिनेशन, तब समझ में आएगा. अभी आप फिलहाल इतना समझ लो कि इन एक्सचेंज में हम लोग क्या करते हैं? प्राइस डिटरमाइन होता है. किसका प्राइस डिटरमाइन होता है? किसी भी कमोडिटी का प्राइस डिमांड होता है थ्रू द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. मतलब मान लो किसी चीज़ की डिमांड अगर बढ़ रही है तो उसका प्राइस कौन डिटरमाइन करता है, और अगर किसी चीज़ की सप्लाई ज़्यादा हो गई है तो उसकी प्राइस कम हो जाएगी. इसको बोलते हैं एक्सचेंज, इसको बोलते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन. We know that production is the result of the combined efforts of the four factors of production, namely land, labor, capital and entrepreneur. So the production is distributed among these factors in the form of rent, wages and profit respectively. Thus, this division is studied in the distribution section of economics. Public finance. Due to the increase in the role of government, public economics has now emerged as a separate branch of study. Public finance is the most important topic of public economics. ये हमें नहीं पढ़ना. This is not important for you. So this you leave it. Now students, we were talking about human activities. In that we saw economic activities. Now let us see what is non-economic activities. See children, economic activities का concept आप लोगों का definitely clear हो चुका हो, तो अब non-economic activities के तरफ तुम लोग ज़रा ध्यान देना. हाँ, sorry for the disturbance. See students, non-economic activities का मतलब वो होता है activities which are not concerned with creation of money or wealth आर नोन एज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में मैंने अभी आपको बताया कि वो सारी एक्टिविटीज़ जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, ठीक है. बट नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब ऑल दोज एक्टिविटीज़ वेयर मनी क्रिएशन और वेल्थ क्रिएशन इज नॉट इन्वॉल्व. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ योर मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर यू, ठीक है, भूख लगी है, मम्मी खाना बनाती है आप लोगों के लिए घर में कि नहीं? सबकी मम्मियाँ बनाती है. सो इफ़ योर मदर इज़ कुकिंग फूड फॉर यू और इफ़ एनी हाउस वाइफ इज़ कुकिंग फूड फॉर हर फैमिली, दैट मीन्स दैट इज़ हर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. क्या मम्मी को खाना बनाने के बदले में कोई पैसा दे रहा है? क्या हम मम्मी को कोई सैलरी देते हैं हर महीने में कि हाँ मम्मी आप घर में बहुत काम करती हो, आप हमारे लिए खाना बनाती हो, बर्तन धोती हो, कपड़े धोती हो, तो मदर इज़ डूइंग ऑल द वर्क फॉर यू. मदर मतलब कोई भी हाउस वाइफ हो जो अपनी फैमिली के लिए अगर सारे घर के काम करती है तो उसको इन रिटर्न में कोई सैलरी नहीं मिलती है. सो दैट इज चिल्ड्रन अ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ में आ गया? सिंपल मीनिंग में मैंने समझा दिया है. वन मोर एग्जाम्पल यू टेक. सपोज आई एम अ टीचर, I am teaching to you people. So I am teaching economics to class 11 students. So I am getting paid for it. So that is my economic activity. But for example, if my child is also in class 11 and I am teaching economics to him at my home, अगर मैं अपने बच्चे को घर में economics पढ़ा रही हूँ तो क्या वो economic activity हो सकती है क्या? No, that is a non-economic activity. Why? Because in that I am not getting anything in return.
क्या मेरा बेटा या क्या मेरे हस्बैंड क्या मुझे पे कर रहे हैं क्या? नो। अगर मैं ट्यूशन लेती हूँ तुम लोगों को अपने घर में इकोनॉमिक्स के लिए, तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। लेकिन मैं पर्सनली अगर अपने बच्चे को इकोनॉमिक्स पढ़ाऊँगी तो वो मेरी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो सकती है। क्यों? क्योंकि वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। सो आई होप चिल्ड्रन, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, द मीनिंग इज क्लियर टू यू। Housewife cooking food for her family or a teacher teaching his own son. In non-economic activities there is no expectation. अब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होती हमें बदले में। अगर मैं अपने बच्चे को पढ़ा रही हूँ तो मुझे उसके बदले में क्या एक्सपेक्टेशन होगी कि मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले। लेकिन मैं ये नहीं सोच सकती हूँ कि हाँ मेरा बेटा मुझे इसके बदले में फीस देगा या माई हस्बैंड इज गोइंग टू पे मी इन मॉनेटरी रिवॉर्ड्स। आई एम नॉट गोइंग टू गेट एनी मॉनेटरी बेनिफिट। सो दे आर इंस्पायर्ड बाय सेंटिमेंटल रीजन्स। मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में हम लोग सेंटिमेंटल रीजन से इंस्पायर्ड होते हैं। सेंटिमेंटल रीजन्स मीन्स सपोज आई एम टीचिंग इकोनॉमिक्स टू माई सन, सो इन रिटर्न इफ माई सन इज स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन माई सब्जेक्ट, सो दैट इज माई रिवॉर्ड, दैट इज द बेनिफिट आई एम गोइंग टू गेट थ्रू माई सेंटिमेंट्स एंड दे आर परफॉर्म्ड आउट ऑफ लव। इफ योर मदर इज कुकिंग फूड फॉर यू, तो क्या मम्मी को खाना बनाने के लिए पैसा मिल रहा है क्या? नहीं। तो भी अगर आप तारीफ करोगे, यस ममा द फूड इज क्वाइट गुड, सो ऑलवेज अप्रिशिएट योर मदर चिल्ड्रन। वेन एवर योर मदर इज कुकिंग एनीथिंग फॉर यू, यू शुड ट्राई टू अप्रिशिएट। नाउ अब तक नहीं करते थे तो अब अप्रिशिएट करो, बिकॉज यू विल सी द डिफरेंस, बिकॉज शी इज गोइंग टू फाइंड a sympathy, means you can give her love and sympathy in return, because she is not getting any monetary rewards, but if she gets love and sympathy from you people, definitely she will try to, means she will be more inspired and you will definitely help her in increasing her love and respect. So अगर आप अपने बदले में मम्मी को कुछ एफर्ट्स देते हो कि यस मामा द फूड इज क्वाइट गुड, आई रियली लव योर ऑसम फूड, so she will feel very happy, क्योंकि she is not getting any monetary reward for cooking the food. So this is the thing you can do. She is doing all the activities out of love, sympathy and sentiments and patriotism. एक और एग्जाम्पल ले लो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का। चैरिटेबल एक्टिविटीज़ जो होती है ना, जो लोग ब्लड डोनेशन के कैंप्स लगाते हैं या फिर जो लोग फ्री एजुकेशन देते हैं नीडी स्टूडेंट्स को, दैट इज़ ऑल्सो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। या फिर सोशल एक्टिविटीज़ लाइक गेट टुगेदर और अटेंडिंग द पार्टीज़। अगर आप किसी पार्टी अटेंड कर रहे हो, कोई गेट टुगेदर में जा रहे हो, तो वो भी आपकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देन पोलिटिकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय डिफरेंट पोलिटिकल पार्टीज़। देन रिलीजियस एक्टिविटीज़ लाइक प्रेइंग टू गॉड, all these comes under non-economic activities. So this was the introduction of first chapter, that is economics in our statistics children. Now in our next video we are going to study about chapter 2. I hope first chapter में economic activities और non-economic activities everything is clear to you. और ये जो chapter के basic terms है, please understand this thoroughly, they are very much important for you. अब इस चैप्टर के पीछे देखो, ऑल द चैप्टर्स के पीछे देर आर रिविजन ऑफ की पॉइंट्स। प्लीज स्टडी ऑल दिस थिंग्स, बिकॉज ये सब पढ़ने के बाद आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। देन रीड ऑल दिस क्वेश्चंस वेयर आंसर्स इज गिवन, देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ऑल्सो यू हैव टू स्टडी। सी एवरीथिंग यू हैव टू स्टडी विच इज बिहाइंड द टेक्स्ट बुक। एक्सरसाइज पार्ट आपको पूरा पढ़ना है, पहले मेरे सारे एक्सप्लेनेशन के वीडियोज देखो और फिर एक्सरसाइज को सॉल्व करो, ठीक है? Till then, goodbye children and take care of yourself. And in the next class we are going to study chapter number 2, that is meaning, scope and importance of statistics. Thank you for watching.